Hello dear students, welcome to Sri Shraddha English Medium School Online Education. Standard A Grammar. Chapter number 4 Question Tags. अब हम ये सोचेंगे कि क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैं आप लोगों को एक सेंटेंस बताती हूँ। जैसे कि एक सेंटेंस है कि क्लास हो, उसमें बात हो रही हो, then teacher says Nitin is a clever student, isn't it? Then the students will determine that कि yes it is, मतलब कि उसके स्टेटमेंट को, जो टीचर ने स्टेटमेंट बोला उसके स्टेटमेंट को yes कहना, मतलब कि हाँ ऐसा ही है, उसे क्वेश्चन टैग कहेंगे। जैसे कि she is an intelligent girl, isn't she? हम कभी कभी बातों में इस तरह से दोहराते हैं बात को, तो उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं, क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड टू गेट द स्टेटमेंट कन्फर्म्ड। I have said you that if the statement is true, then the other people, otherwise the speaker confirmed it, then it will be question tags. कंफर्म करना यानी कि डिटरमाइन करना कि हाँ ऐसी ही बात है। नाउ वी विल सी द रूल्स ऑफ द क्वेश्चन टैग। लेट्स स्टार्ट। रिमेंबर, अ क्वेश्चन टैग शुड हैव ओनली 2 words. क्वेश्चन टैग शुड हैव ओनली 2 words. I had said you that she is an intelligent girl, isn't she? तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन टैग हुआ isn't she, then question mark. We can see that there are only 2 words in the question tag. See na? We can see that only 2 words in the question tag, and question tag, so we have to put question mark at the end of the question tag. Remember that we have to put question mark, compulsory question mark at the end of the question tag. The first rule is a question tag should have only 2 words. The helping verb of the statement followed by a pronoun of the same person as the subject. We will see that we have 2 words in this question tag. First word is the helping verb of the statement. हेल्पिंग वर्ब मीन्स कि अगर हमारे सेंटेंस में ऐसा है सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो सी के साथ इज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। क्लियर? तो इज़ है ये हमारे स्टेटमेंट का, इज़ अवर हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस स्टेटमेंट, सो वी हैव राइट इज़ंट as a helping verb of question tag. Then we had put the pronoun of the subject she, तो यहाँ पर हमने subject she. If we have name, if in our sentence we have Neha, then also we will write she. Why? Pronoun of the subject. In our rule, we had told that we will have to write the pronoun of the subject. हम ऐसे नहीं लिख सकते isn't नेहा, ऐसे नहीं लिख सकते, but Neha is a girl, so its pronoun will be she. So we have to write down in our question tag isn't she, not Neha, not a name, but we have to write down the pronoun of the subject. Understand the first rule? Now we will see the second rule. The tense of the question tag should be same as that the statement. Now we can see that tense, जो टेंस में सेंटेंस है, अगर पास्ट टेंस में सेंटेंस हो तो क्वेश्चन टैग का भी जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो पास्ट टेंस का आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का आएगा, फ्यूचर टेंस में है तो फ्यूचर टेंस पास्ट आएगा।
then we can see that the second rule, the tense of the question tag. Tense of the question tag. When we are putting the question tag in our answer, we have to see first of all the tense of our statement. हमें जो statement दिया गया है, समझ रहे हो ना, हमें जो स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट का हमें सबसे पहले टेंस देखना होगा, फिर सब्जेक्ट देखना होगा, फिर हमें डिसाइड करना होगा कि हमें क्वेश्चन टैग में क्या रखना है, क्योंकि टेंस देख के हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा रखना है वो समझ में आएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट देख के हमें प्रोनाउन कौन सा रखना है वो समझ में आएगा. देन क्लियर सेकंड रूल्स. नाउ वी विल सी थर्ड रूल. If the statement is positive, that is the most important point of our question tag. If our statement, यहाँ पर हमने जो statement एक example में लिया, नेहा is an intelligent girl, यानी कि ये जो हमारा statement है वो पूरा positive में है. Then what we'll have to do? Isn't, see यहाँ पर isn't, हमने short form, is not का short form, इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म इजंट लगाया. क्यों? बिकॉज द रूल ऑफ आवर क्वेश्चन टैग सेज दैट इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग शुड बी नेगेटिव, एंड इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन द क्वेश्चन टैग शुड बी positive. Clear? Now we will understand that the three rules. First of all, we have to see the subject and helping verb. Two words, subject and helping verbs. First rule is the question tag should have only two words. Second rule is the tense of the question tag. हमें tense देखना है कौन सा है, and pronoun हमारा subject भी देखना है. And last rule is if the positive we have to write down negative. अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव तो पॉजिटिव, यानी कि उल्टा कर दो. ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स समझेंगे. लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ आवर क्वेश्चन टैग. देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो हमें समझनी है. तो सबसे पहले जो हमारे रूल्स हैं, कीप इन आवर माइंड. आई हैव explain you the rules, so the rules you should have to keep in your mind. Then we can write down the question tags. Let's see. First example, Rama is an intelligent girl, isn't she? तो यहाँ पर हमारे जो रूल्स है कि दो वर्ड्स का ही क्वेश्चन टैग होना चाहिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर जो है उसी तरह यहाँ के टेंस देखकर ही, यहाँ इज है तो इज, पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पर शॉर्ट फॉर्म्स. ओके, तो इजंट. अब शी यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि रमा इज अ नेम ऑफ अ गर्ल, सो रमाज प्रोनाउन इज सी, तो उसका प्रोनाउन हमें ध्यान में रखना है. प्रोनाउन मतलब कि नाम की जगह यूज किया हुआ वर्ड. गर्ल्स के लिए शी, बॉयज़ के लिए ही, प्लेस वस्तु के लिए इट सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए दे, वी, ये सब प्रोनाउंस है. क्लियर? नाउ वी विल सी नेक्स्ट. ही विल हेल्प मी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द टेंस ऑफ द स्टेटमेंट. विल मीन्स फ्यूचर टेंस, तो यहाँ पर विल जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है. तो विल और पॉजिटिव है, नॉट वाला नहीं है, नेगेटिव नहीं है, मतलब कि हमें जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव में बनाना है. अब विल नॉट ऐसा हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें पता है कि हमें उसमें शॉर्ट फॉर्म ही लिखना चाहिए. तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा वॉन्ट. क्या होगा? वॉन्ट. देन वी विल राइट डाउन इन आवर क्वेश्चन टैग वॉन्ट, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वॉन्ट. अब हमें यहाँ प्रोनाउन क्या लिखना है? तो ही विल हेल्प मी, वॉन्ट ही. ओके, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करना ना भूलें. क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन टैग आंसर आएगा वॉन्ट ही. क्लियर? इफ वी फॉलो द रूल्स ऑफ द क्वेश्चन टैग, our answer will never be wrong.
Clear? Now let's see. Your friend will reach in time. First of all, we have to see the tense. Tense is will. That's also future tense. So will है, पॉजिटिव है तो want आएगा, वो तो मैंने समझाया, तो लिख दीजिए want. हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दीजिए. नाउ वी हैव टू सी द सब्जेक्ट. ओके, यहाँ पर सब्जेक्ट योर फ्रेंड. कई लोग ऐसे मिस्टेक करते हैं, कई स्टूडेंट्स की योर या ऐसा कुछ हो तो ऐसे बोलते हैं कि यू, बट नो यू. योर फ्रेंड मीन्स फ्रेंड की बात की गई है, तो हमारा सब्जेक्ट है योर फ्रेंड मीन्स ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है. क्लियर? Then we have to understand that your friend, we have to use pronoun for your friend, he otherwise she. तो want he, we will write down want he or question tag. Want she लिखोगे तो भी राइट होगा. Clear? Next, Kunal can lift the box. We have to see the helping verb. Helping verb is can in the positive statement. Then we will write down can't. Short form of cannot is can't, and name is, subject is Kunal. Kunal is the name of a boy, so we have to write down. सोचिए, yes he. तो can't he? Then we have to write down question mark. Clear? Next, Ashima learns English. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी लर्न्स. यहाँ पर ध्यान दीजिए, लर्न्स यानी कि यहाँ पर इज, एम, आर, वॉज, वेर, विल, नथिंग. देन व्हाट विल हैव टू डू? बट आवर हेल्पिंग वर्ब इज लर्न्स, यानी कि यहाँ पर इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. डू, डज आया ना याद? हाँ, तो लर्न्स है मतलब कि यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब डू अदरवाइज डज. लर्न्स है थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो वी हैव टू यूज डज. देन वी विल राइट डाउन हेल्पिंग वर्ब डज, बट पॉजिटिव या नेगेटिव वो हमें समझना है. असीमा लर्न्स इंग्लिश, आवर स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, सो वी हैव टू राइट डाउन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द नेगेटिव, तो डजंट. क्लियर? Then we have to see the subject of our statement. Subject is Asima. Asima is the name of a girl, so we have to write down C. Then we have to write down question mark. Clear? Next example, you cannot beat me in the race. Now we can see that our statement is in negative, cannot. So what we'll have to do? Our rule was that if our statement is positive, we have to write down question tag negative. If our statement is negative, we have to write down positive. Clear? Then we will see that our statement is negative, so we have to write down in positive. Clear? Now we have to write down the positive helping verb. Which helping verb? Say. Yes. Cannot. तो यहाँ पर हम लिखेंगे can. Clear? Then You cannot beat me in the race, कि तुम मुझे रेस में नहीं हरा सकते. तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? You. तो we have to write down you. Can you? Then question mark करना ना भूले, बिकॉज हमारा जो सब्जेक्ट है वही है कि क्वेश्चन टैग. ओके. लास्ट एग्जाम्पल, द अर्थ इज नॉट फ्लैट. ये भी स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है. दिस स्टेटमेंट इज नेगेटिव, सो वी हैव टू राइट डाउन आवर क्वेश्चन टैग इन द पॉजिटिव फॉर्म. क्लियर? देन वी फाइंड आउट हेल्पिंग वर्ब इज नॉट, तो यहाँ पर हम इज लिखेंगे, हमारा हेल्पिंग वर्ब इज. देन वी फाइंड आउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज द अर्थ, अर्थ मीन्स द थिंग. देन वी हैव टू राइट डाउन इट. ही और शी का हम यूज नहीं कर सकते अर्थ के लिए, सो इज इट. क्लियर? तो आई होप कि आपको ये जो सभी एग्जाम्पल्स है वो अच्छे से समझ में आया होगी. इस चैप्टर के आगे के पॉइंट्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर.